Hey everybody, I am Vijay Kumar. Today I am going to share with you one of the chapter of class 12, The Rat Trap, written by Selma Lager Loff. About the author, Selma Lager Loff was born in Ostra Imtervik, Vitermland, Sweden. She was brought up on Marveka, the family estate, which she did not leave until 1881, when she went to a teacher's college in Stockholm. In 1885, she became a teacher at the girls' secondary school in Landskrona. She had been writing poetry ever since she was a child, but she did not publish anything until 1890. Her stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that one can awaken the innate goodness in a human being through love. Settings of this story. This story's setting: Amish mines of Sweden reach in iron ore, manner of a fairy tale. The theme of the story. The remarkable theme of the story is that man is inherently good by nature, and it is the material benefits or the society and the environment he lives in makes him sad. Since the story ends on a positive note of hope, we infer that human goodness and kindness can bring about the change in the attitude of any person trapped. About the title, Selma Lager Off gives a very apt and logical title to the story. The metaphor of the rat trap is very effectively used. The whole world is nothing but a big trap. All riches, joys, food, and shelter, and just waits the moment anyone touches the bait, the rat trap closes in on him, then everything comes to an end. About the paddler, the character sketch of the paddler. Paddler or the rat trap or Captain von Estel, it is his nickname. The paddler was a poor vagabond. He sold rat traps to earn his living or keep his body and soul together. He also resorted to thievery when required. He was struck with a dark realization that the world is itself a rat trap, and all men and women are just like rats that are vulnerable to be trapped to various types of baits. He was inherently not a bad person. He had some goodness in him that was irked by Itla, the Iron Master's elder daughter. In the end, he transformed himself and returned the stolen money to the crofter through Idla, loving, caring, and devoted family. इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो पैडलर है और उसको रैट ट्रैप के नाम से भी जाना जा रहा है। उसका ओरिजिनल नेम था कैप्टन वॉन स्टेल। वह बेचारा बहुत ही गरीब और वेगाबॉन्ड के रोल में है इस कैरेक्टर में। वह रैट ट्रैप बेचा करता था घूम घूम करके ताकि वो ज़िंदा रह सके, उससे जो इनकम होगा। इतना ही नहीं, अगर उससे उसकी पूर्ति नहीं होती थी तो वो चोरी भी किया करता था। ही वॉज स्टक विथ ए डार्क रियलाइजेशन। उसको ऐसा करते करते एक दिन ऐसा अनुभव हुआ कि सारा दुनिया जो है एक रैट ट्रैप की तरह है। उसने मेटाफर के रूप में उसने कंपेयर किया, जैसे चूहेदानी जो होता है चूहा को पकड़ने के लिए होता है, जिसमें बेट्स रखा रहता है, कुछ खाने के रखा रहता है, चूहे आते हैं खाने के लिए और फंस जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस दुनिया में चाहे मैन हो या वुमेन हो, अगर वो पैदा लिए हैं तो लालच में वो फंस जाते हैं। ये मोह है, माया है, और फंस जाते हैं, फिर उससे वो निकल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने उस पैडलर ने इस दुनिया को कंपेयर किया है एक रैट ट्रैप से। ही वॉज इनहेरेंटली नॉट ए बैड पर्सन। अगर कहें तो सहज रूप से वह बुरा आदमी नहीं था, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। और एक दिन जब उसकी मुलाकात आयरन मास्टर की बेटी इडला से होती है तो उसकी अच्छाइयाँ उभर करके बाहर आ जाती है। जबकि जब वो वहाँ पहुँचता है
तो उसके पास 30 रुपीज़ मतलब 3 करोड़ नोट्स था उसका, जो वो चुरा के लाया था एक कुटिया से जहाँ से ओल्ड मैन क्रॉफ्टर रहता था उसका, लेकिन वो वहाँ पर वो उसको दे देता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द इटला विल्मैनसन, द गर्ल, द सेकेंड मैन कैरेक्टर। शी वॉज द ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy by heart, kind-hearted, compassionate, smart enough to understand rightly from the peddler's eyes that he might have escaped from jail or stolen something. By being a good host, they actually elevated peddler's nature to that of a captain. She was a great human being. यहाँ पे आप देखेंगे कि इटला विल्मैनसन एक बहुत ही दयालु लड़की थी और आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी थी वो। नो डाउट वो देखने में उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही विनम्र थी और अपने दिल से वो शाय नेचर की थी, शर्मीली थी, लेकिन काइंड हार्टेड थी, दयालु थी, जेनरस थी वो। और जब पहली बार उसने देखा था इस पैडलर को, तो उसके आँखों में आँख डाल करके वो पता कर ली थी कि शायद या तो ये जेल से भागा है या इसने किसी को कुछ चुराया है, इसलिए वो इस कंडीशंस में है। हालांकि वो भेगाबंद के रूप में था। जब उसके पिताजी उसको इस रूप में पहचाने कि वो कैप्टन है, मेरा दोस्त है, जब हमारे जॉब में काम करते थे उस समय, तो उसको ले जाना चाहते थे। हालांकि पैडलर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुमको जाना पड़ेगा। तुम फिर इडला आकर के रिक्वेस्ट करती है तो पैडलर मान जाता है, वहाँ जाता है। नेक्स्ट डे उसको पूरा नहला करके धुला करके उसको अच्छा टाई कोट पहनाया जाता है, दाढ़ी बनवाया जाता है। और जब उसको सामने लाया जाता है इडला के फादर के पास, तो इडला का फादर कहता है ये तो मेरा दोस्त नहीं है, और उसको डांटता फटकारता है, भगाने लगता है। इडला ही आकर के उसके फादर को समझाती है, अपने फादर, पिताजी ये गलती आपकी है कि आपने इस पैडलर को अपना दोस्त समझा और बुला के लाए, इनकी गलती नहीं है। जब आप क्रिसमस ईव में लाए हैं इनको, तो क्रिसमस होने दीजिए, फिर ये चले जाएंगे। A crofter, he was lonely and had nobody to talk to. He was happy to see the peddler and gave him shelter. The gesture made the peddler feel welcome and comfortable because he was used to seeing sour and unwelcome faces. Ordinarily, he was generous. He had been a crofter at Ramso Ironwork, trusted the stranger easily with his confidences. एक क्रॉप्टर, एक बूढ़ा आदमी जो है, कभी वो काम किया करता था रामसो आयरन वर्क्स में। अब वो रिटायर कर गया था, तो एक फॉरेस्ट के पास उसने अपना एक कुटिया बना रखा था, एक गाय पाल रखा था, और वो अकेले रहता था, उसके साथ कोई नहीं रहता था, कोई बात करने वाला भी नहीं था। तो जब पैडलर वो पहुंचता है रात में वहाँ पर, ये जो था तो पैडलर जब वहाँ पहुँचा, वो अपना ये रैट ट्रैप ले करके, रात हो गई थी उसको, तो उसने इस बूढ़ा आदमी क्रॉप्टर से जा कर के रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को यहाँ रहने दीजिए। तो क्रॉप्टर के कैरेक्टर को आप देखिए, वो बहुत खुश हुआ कि चलो एक आदमी आया। उसने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया, आवाभगत किया, और जैसा कि दूसरा आदमी देख कर के ही भाग जाता था, लेकिन उसने बहुत स्वागत किया, उसको खिलाया पिलाया, रात में रखा, उसके साथ उसने कार्ड खेला। मतलब वो बहुत खुश हो गया था एक स्ट्रेंजर को देख कर के, एक अजनबी को देख कर के। उसकी कमज़ोरी थी कि कोई आदमी मिल जाए उससे बात करें, और यही कारण है उसका गलत फ़ायदा इस पैडलर ने उससे उठाता है। और नेक्स्ट इज टॉम एंड आयरन मास्टर। इडला के पिताजी का नाम टॉम था, वह एक आयरन मास्टर था। द आयरन मास्टर वॉज द ओनर ऑफ ए लार्ज आयरन फैक्ट्री, रामसो आयरन वर्क। वह मालिक था रामसो आयरन वर्क का। हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू सीप आउट गुड आयरन इन द मार्केट। उसका एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन का सामान बना करके हम मार्केट में बेचें, बाहर बेचें, भेजें। बट ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटी एज ही यूज्ड टू गो टू द फोर्ज फॉर नाइटी इंस्पेक्शन। लेकिन वह बहुत ही मेहनती था और बहुत ही अलर्ट रहता था। हर एक रात को अपने वर्कशॉप में जा कर के एक बार इंस्पेक्शन किया करता था। ही मिस्टेक्स द रेड ट्रैप सेलर एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान होता है, परिचित होता है।
तो उसने उस रात में, जिस रात में रैट ट्रैप भटकता हुआ गिरते पड़ते ठंडी की रात में वहाँ पर पहुँचता है, तो यह जब रात में ये भी पहुँचता है टॉम वहाँ पर आयरन मास्टर, तो उसने उसको अपने दोस्त के रूप में पहचाना। which shows that just like his daughter even he was kind hearted and helpful। ये इससे ये बताता है कि वो भी अपने बेटी की तरह काइंड हार्टेड था और हेल्पफुल भी था। ही टुक हिम टू हिज ओन हाउस एंड केयर फॉर हिम। वो ज़बरदस्ती अपने घर उसको ले गया और उसकी देखभाल नहीं चाहते हुए भी किया। जब उसे पता चल गया कि ये मेरा दोस्त नहीं है नेक्स्ट डे, तो गुस्साया, लेकिन उसकी बेटी आरे आकर के उसको समझाया। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। Through the story, The Rat Trap, the author underlines the belief that essential goodness in human beings can be aroused through sympathy, understanding and love। इस स्टोरी में, द रैट ट्रैप के स्टोरी में ये बताया गया है कि एक रैट ट्रैप जो है, जो पैडलर है, वो तो रैट ट्रैप बेचता ही बेचता है। उससे अगर उसकी भरपाई नहीं होती है, वो भूखा रह जाता है, तो वो चोरी भी किया करता है। लेकिन उसको बदली है, किसने बदला? उसके व्यवहार को इडला ने बदला। कैसे बदला? थ्रू द सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो ऑथर कहता है कि तीन चीज़ एक मेडिसिन रेमेडी है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चला गया है, तो आप उसे तीन तरीके से, तीन चीज़ का इस्तेमाल करके बदल सकते हैं। एक है सिंपैथी, या आप उसके ऊपर सहानुभूति रखिए। अंडरस्टैंडिंग, आप उसको समझिए कि वो क्या चाह रहा है, उससे कैसे डील करें, और आप अपना प्यार जताइए। ऑटोमेटिकली वो बदलेगा, जैसा कि इस स्टोरी में पैडलर के साथ भी हुआ। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ मैन हु यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स, steals and even begs to make his ends meet। While walking, he was struck with a sudden realization that the whole world is a rat trap and it offers riches as a bait। तो इसमें जैसा कि बताया गया कि रैट ट्रैप जो है, उसने ये रियलाइज़ किया अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि सारा दुनिया एक रैट ट्रैप है, और उस पर इसमें हम लोग इसके प्रलोभन में आकर के फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। जस्ट लाइक ए रैट, एक रैट की तरह इज टेम्प्टेड टू टच एंड टेक द बेट अवे, इवन पीपल आर टेम्प्टेड टू टच द बेट प्रोवाइडेड। यस, द वर्ल्ड, and as soon as they get closer, it traps them, bringing everything at the end। One dark evening, the rat trap peddler sought shelter in old crofters roadside। तो उसे इस बात का एहसास होता है कि जैसे चूहा आता है, उसमें अगर कुछ खाना का सामान हम रख देते हैं चूहेदानी में, तो खाने के लिए जाता है, और जैसे ही वो पकड़ता है रोटी का टुकड़ा या खाने का कोई भी सामान है, वो गिर जाता है, उसका गेट बंद हो जाता है, वो फंस जाता है। ठीक उसी ढंग से जब यहाँ आते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हमको दिखाई पड़ती है। हम उसके पीछे भागते हैं हासिल करने के लिए, और उसके पीछे हम इतना भागते जाते हैं कि वो और मेरे से दूर भागते जाता है, और उसको पकड़ने के लालच में, उसको पाने के लालच में हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं, हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, और इस माया मोह के संसार में फंस जाते हैं, जैसे एक रैट आकर के रैट ट्रैप में फंस जाता है। एक रात जब वो रैट ट्रैप वेगाबॉन्ड की ज़िंदगी जीता था, इधर उधर घूमते रहता था, तो जब वो पहुंचता है उस क्रॉफ्टर के पास रात में, तो क्या होता है? द ओल्ड मैन वाज काइंड हार्टेड एंड जनरस एंड गेव हिम फूड, टोबैको एंड इवन प्लेड ए कार्ड गेम विथ हिम। तो यह बूढ़ा आदमी इतना ही दयालु था कि उसने उसको सिर्फ खाना ही नहीं खिलाया, टोबैको भी खिलाया, उसके साथ कार्ड गेम भी खेला। द ओल्ड मैन टोल्ड हिम अबाउट हिज अर्निंग्स, उसने यहाँ तक बताया कि वो कितना कमाता है। एंड ऑल्सो टोल्ड हिम वेयर ही केप्ट देम, और वो कहाँ रखता था वो भी दिखाया, वो बैग लेकर के जो टंगा हुआ था कि इसमें मैं रखता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर स्टोल अवे द ओल्ड मैन अर्निंग दैट वेर 30 क्रोनोर। और जब सुबह हुआ तो दोनों जब घर से निकलने लगे एक साथ, तो उसने देख लिया था कि ये बूढ़ा आदमी रुपया कहाँ रखता है। जो उसका विंडो था उसके बगल में उसका बैग टंगा हुआ था, उसी में रुपया था। जब बूढ़ा चला गया तो यह चोर फिर वापस आ गया, और उस विंडो के पास जा कर के विंडो को ब्रेक करके, तोड़ करके और हाथ डाल करके उस बैग से रुपया निकाल लेता, फिर बैग टांग करके वहाँ से भाग जाता है। He escaped into a big confusion forest and got lost। तो वो मेन रोड से जा रहा था, लेकिन उसको इस बात का डर था कि हम पकड़े जाएंगे, तो वह एक जंगल में चला जाता है।
लेकिन जंगल में क्या होता है, दैट विल सी ही लॉस्ट हिमसेल्फ द वे, वो रास्ता निकल ही नहीं पाता कि हम कहाँ जाएं। एक ही तरफ जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से घूम के फिर वहीं आ जाता है जहाँ वो से चला था। ही गॉट टायर्ड एंड जस्ट व्हेन ही वॉज अबाउट टू कंक्लूड दैट हिज एंड इज नियर ही हर्ड द थम्पिंग वॉइसेस फ्रॉम द राम्स आयरन वर्क एंड ही वेंट इनसाइड टू सीक शेल्टर फॉर द नाइट। लेकिन जब घूम घुमौआ में भूल भुलैया में फंस गया उस जंगल में, उसको रास्ता निकलने का नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। थक हार करके जब ज़मीन पर लेटा तो उसे हथौड़े की आवाज़, वाइब्रेशंस आई कि तो लगा कि कहीं यहाँ पर कोई फैक्ट्री है। वहाँ पर वो बहुत ही शमन ऑल ही जस्ट एंड पूरी ताकत लगा करके चला नहीं जाता था, भूखा था। एनीवे किसी तरह से वो अपने आप को घसीटते हुए ड्रैगिंग हिमसेल्फ ही वेंट टू राम्स आयरन वर्क, वहाँ पर वो पहुँचता है। ओनर भी वहाँ आ गया था। द ओनर सुन केम एंड नोटिस्ड हिम एंड मिस्टेकन हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हिज नेम्ड नेल सोलूफ। उसने उसको लगा, उसके ओनर को, उस रामसो फैक्ट्री का जो आयरन वर्क फैक्ट्री था उसका जो मालिक था, उसको लगा कि यह पैडलर जो है भिखारी के रूप में आज भले यह मेरा दोस्त है, इसका नाम नील सोलूफ है। He invited the peddler to stay with him for the Christmas Eve, as even he and his daughter were unhappy spending the eve all alone. उसने उसको इनवाइट किया कि चलो आज हम लोग क्रिसमस मनाएंगे। अपने डॉटर के साथ वो नहीं मान रहा था, डॉटर को भेज करके उसको समझाया और फिर ले आए। दो द पैडलर वॉज रिलक्टेंट व्हेन द ओनर ऑफ द मिल सेंट हिज डॉटर। लेकिन जब उसकी डॉटर वहाँ इडला विलमैनसन पहुँचती है और उसको समझाता है कि नहीं चलिए अंकल, तब वो जाता है। द पेडलर रियलाइजेज दैट बाय स्टीलिंग 30 करोड़ फ्रॉम द ओल्ड मैन एंड एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन फॉर क्रिसमस ही वॉज नोइंगली थ्रोन हिमसेल्फ इनटू ए लायंस डेन। वो 30 रुपया चुरा के ले गया था। उसको इस बात का डर था कि अगर हम ये जा रहे हैं कि लायंस के डेन में, मुंह में उसको जो है हम हाथ डाल रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं, हम फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। फिर भी वो आयरन मास्टर था, उसके घर पर गया। चूँकि इडला आई थी रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उसके रिक्वेस्ट को वो टाल नहीं पाया। When the peddler came to the dining table, all well groomed and dressed, not as a tramp but as a gentleman, the iron master or the owner realizes that he had mistaken him and he threatened to call sheriff. और जब नेक्स्ट डे वो नहाया धोया और उसके बाद जा कर के आयरन मास्टर उसको बुलाया, टाई कोट में जब पहुंचा तो समझ गया कि ये मेरा दोस्त नहीं है, पहचान पाया। चूँकि रात में ठीक से पहचान नहीं पाया, उसने उसको धमकी दिया कि हम पुलिस को बुलाएंगे, जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन उसकी बेटी वो आकर के उसको बचाती है। दो हिज डॉटर प्लीडेड दैट द पैडलर शुड नॉट बी ब्रदर bothered and he deserves at least one day at peace. The iron master, although reluctantly, agreed to his daughter's request, and the peddler was given food and place to sleep and was not disturbed except for food. Next morning, the iron master and his daughter learned at the church about the man who stole 30 crore from the old man and escaped into the woods, and they realize it's none other than their guest, and they rush home to find that the man was gone. तो जब वो भगा रहा था उसको, इस पैडलर को, तो उसकी बेटी ने समझाया कि पिताजी आज क्रिसमस का दिन है, आज भर तो रहने दीजिए, गलती उसकी नहीं आपकी है। जब आपने बुला के ले ही आया तो आज क्रिसमस डे फेस्टिवल का दिन है, इनको आज भर रहने दीजिए, कल ये सुबह चले जाएंगे। रात भर वो सब एक साथ खाना पीना खाया, उसने एंजॉय किया क्रिसमस को। और जब सुबह हुई तो ये लोग चर्च गए। कौन? आयरन मास्टर, उसकी बेटी। तो वहाँ बहुत हल्ला था कि एक बूढ़ा आदमी का 30 करोड़ किसी ने चुरा लिया है, ऐसा एक भेगा बॉन्ड है, भिखारी है। इन लोगों को लगा कि ओह शायद वही गेस्ट है जिसको मैं रखे हुए हूँ, वो चोर है। वो चर्च से दौड़े दौड़े अपने घर में आए और जब गार्ड से पूछे कहाँ है तो बताया गार्ड चला गया। इन लोगों ने तो माथा पे हाथ दिया। बट ही डिड नॉट स्टील एनीथिंग, इंस्टीड ही लेफ्ट ए पैकेट फॉर इडला एज हर क्रिसमस प्रेजेंट। लेकिन वहाँ से जब वो गया तो कुछ छोड़ा नहीं था, उसने एक पैकेट छोड़ा, और वो भी इडला के लिए क्रिसमस प्रेजेंट गिफ्ट के रूप में।
शी opens द पैकेट एंड फाइंड्स ए रैट ट्रैप। और जब उसने पैकेट खोला तो उसमें एक रैट ट्रैप था। 3 रिंकल 10 क्रोनोर था, 30 रुपया मुड़ा हुआ उसमें था। नोट्स एंड ऑल्सो ए लेटर, और 30 रुपया था और एक लेटर उसमें लिखा हुआ था। विथ ए रिक्वेस्ट टू रिटर्न द क्रोनोर्स टू द क्रॉप्टर। उसमें रिक्वेस्ट था कि उस बूढ़ा आदमी जो क्रॉप्टर था उसको ये 30 रुपया लौटा दें। मैं आपके पास रहा, आपकी सिंपैथी से, आपके लव से, आपके कॉम्पनसेट से, आपके काइंड हार्टेड बिहेवियर से मेरे दिल में, हृदय में परिवर्तन आ गया है। इसलिए मैडम ईडला, आप इसे वापस कर दो उसको और मेरे को माफ़ करना। In the story, the author Selma Lagerlöf conveys a definite message. The story has a universal appeal. The essential goodness in a human being never dies. कथा अच्छाई कभी भी ह्यूमन बींग्स में मरती नहीं है। इट कैन बी अवेकन, इसे जगाया जा सकता है, वो सो जाता है। थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, आप सिंपैथी के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा और लव के द्वारा उसको जगा सकते हैं जो उसकी गुडनेस मर गई है। मिस ईडला awakens the basic goodness of the peddler. He is transformed into a noble person in the end. और लास्ट में उसने उसको एक अच्छा आदमी के रूप में बदलने में मदद की। उसकी सोई हुई आत्मा को उसने जगाया, उसकी सोई हुई भलाई का जो गुण था, अच्छाई का गुण था, उसे जगाया। और इन दिस वे he transformed himself. This is all about the story. That's all. Thanks you. Please subscribe, like and share.